how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is more on MS Excel 2016. Let's get started. Look at the table and answer the questions that follow. How many rows and columns can you see? In which cell is the cell points? Which two cells have the same value? What is the value in the cell C3? What is the value in the cell D4? तो बच्चों यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, आपको उस टेबल को देखते हुए नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं. In the previous class, you learned the basics of Excel such as creating a workbook, entering data and saving workbook. In this chapter, you are going to learn more about Excel. Selecting, deselecting cells. The active cell is the selected cell. To select a cell, just click on it. To select a range of cells using mouse, point your mouse pointer to the first cell of the range and drag the left mouse button until all the required cells are selected. To select a range of cells using keyboard, press the shift key and move the lower last cell of the range using arrow keys. To select a complete column, just click at the column header of that column. To select a complete row, just click at the row header of the row. To select the entire worksheet, click at the cross section of row and column heading. Use Ctrl plus spacebar to select column in which a cell is active. Use Ctrl plus A to select the entire worksheet. तो बच्चों पहले हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम एक्सेल में बेसिक चीज़ें जो है वो करते हैं, मतलब अपनी वर्कबुक को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अपने डाटास को उसमें क्रिएट करते हैं, एंटर करते हैं और कैसे अपनी वर्कबुक को आप सेव करते हैं. इस चैप्टर में हम एक्सेल के बारे में और अच्छे से जानेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे कैसे हम किसी भी सेल को सेलेक्ट या डीसेलेक्ट करते हैं. ठीक है, अगर आपको किसी रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है यूजिंग माउस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्टार्टिंग के सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने माउस को ड्रैग करते हुए नीचे लेके जाएंगे जहां तक आपको उन रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है. अब ये आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं. ठीक है, आपको सबसे पहले सेल पे लेके जाना है जहाँ से आप पूरे एंटायर रो को या एंटायर आप रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं. उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, उसके साथ ही आप लोअर लास्ट सेल को भी क्या करेंगे, मूव वहाँ तक उसको लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एरो कीज़. अगर आपको कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आपको कॉलम के हेडर पर क्लिक करना पड़ेगा. अगर आपको कंप्लीट रो को सेलेक्ट करना है तो आपको रो के हेडर पे क्लिक करना पड़ेगा. अगर आपको एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो आपको जो क्रॉस सेक्शन होता है किसी भी रो एंड कॉलम हेडिंग का, उस पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो बच्चों आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप किसी कॉलम को सेलेक्ट कर सकें जिसमें कि सेल जो है वो एक्टिव होता है. आप कंट्रोल प्लस ए को यूज़ कर सकते हैं किसी भी एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए. टेक टिप, यूज़ शिफ्ट प्लस स्पेस बार टू सेलेक्ट अ रो इन विच अ सेल इज एक्टिव. किसी भी सेल को जो कि एक्टिव है उसे सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज़ करना पड़ेगा, मतलब प्रेस करना पड़ेगा. एडिटिंग सेल कंटेंट्स. Editing means overwriting or modifying cell contents. Editing includes the following operations. Overwriting cell contents. To overwrite the contents of a cell, select the cell and type the new data in the cell and press the enter key. Your data gets modified. Modifying cell contents partially. Minor errors in the contents of a cell can be corrected by partial modification. To modify cell contents partially, follow the given steps. Step 1, select the cell. Step 2, click at the formula box or press F2 key or double click on the cell itself. The edit mode is activated and a blinking cursor appears in the clicked cell. Step 3, now modify the contents and press the enter key. अब बच्चों आप अपने सेल के कंटेंट को एडिट भी कर सकते हो. एडिट का मतलब होता है आप उसमें ओवरराइट कर सकते हो या फिर आप अपने सेल कंटेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हो. ये आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे ओवरराइट करेंगे सेल कंटेंट को, आप सिंपली क्या करेंगे, उस सेल पे सेलेक्ट करेंगे, उस सेल के डेटा के साथ आप न्यू डेटा को टाइप करेंगे. ठीक है, फिर आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा है वो मॉडिफाई
हो जाएगा। अगर आप किसी भी सेल को पार्शियली मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप फॉर्मूला बॉक्स पे क्लिक करेंगे या फिर आप F2 की को प्रेस करेंगे या फिर आप डबल क्लिक करेंगे उस सेल पे जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो। देन जो एडिट मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो कर्सर है वो आपके सेल पे ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा। फिर आप कंटेंट को मॉडिफाई करेंगे। जब आपका कंटेंट मॉडिफाई हो जाएगा तो आप एंटर की को प्रेस करेंगे। रिमूविंग डेटा फ्रॉम अ सेल। To delete data from a cell, select it and then press the backspace or delete key or right click on the cell and select the clear contents option। अगर आपको अपने सेल से डेटा को रिमूव करना है तो आप सिंपली उस सेल पे क्लिक करेंगे, फिर आप बैकस्पेस और डिलीट की को प्रेस करेंगे या फिर आप उस सेल पे राइट क्लिक कर सकते हैं और आप क्लियर कंटेंट ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ कॉपिंग द डेटा। Copying of data means that a particular data will remain at its original location and will also be copied to second location. To copy the contents of a cell, follow the given steps. Step 1. Select the range of cells containing the required data. Step 2. Open the Home tab in the Clipboard group. Click on the Copy button. A moving border around the selection will appear showing that the data is copied to the clipboard. Step 3. Click on the first cell of the range where you want to paste the copied data. Step 4. Click the paste button in the clipboard group. तो बच्चों अब हम जान लेते हैं किसी डेटा को हम कैसे कॉपी करते हैं। कॉपिंग डेटा का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो आपकी ओरिजिनल जो उसकी लोकेशन है वहाँ पे तो वो रहेगा ही, साथ ही साथ वो दूसरी लोकेशन पे भी चला जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसके लिए आपको उस रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है जिसके डेटा को आप कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप होम टैब को ओपन करेंगे, देन आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्लिक करेंगे कॉपी बटन पे। एक मूविंग बॉर्डर अराउंड द सिलेक्शन विल अपीयर हो जाएगा, मतलब आपका जो सेल है वो मूविंग बॉर्डर के साथ अपीयर हो जाएगा, डॉटेड लाइन के साथ अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो जो सेल है वो कॉपी करने के लिए रेडी हो चुका है। इसके बाद आप फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे पेस्ट बटन पे इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। नोट: टू रिमूव द मूविंग बॉर्डर आफ्टर यू फिनिश कॉपिंग प्रेस द एस्केप की। और जो मूविंग बॉर्डर है उसे हटाने के लिए आप एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं जब आपका डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी हो जाएगा। मूविंग सेल कंटेंट्स। Moving data means to remove data from one place and put it at, say, some other place. You have to use cut and paste commands. To move the contents of a cell, follow the given steps. Step 1. Select the required data. Open the Home tab and in the Clipboard group, click on the Cut button. Step 2. Click on the first cell of the new range where you want to move the data. Step 3. Click the paste button in the clipboard group. The data gets removed from the original location and appears at the new location. Step 4. Double click in any empty cell to get rid of the moving borders. तो बच्चों हम अपने सेल को कैसे मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ये हम सीख लेते हैं। मूविंग डेटा का मतलब होता है कि आप उसे उसकी ओरिजिनल प्लेस से हटा करके उसे नए प्लेस पे आप उसे क्या करना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हो। ठीक है, इसके लिए हम कट एंड पेस्ट कमांड को यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं ये हम स्टेप वाइज समझ लेते हैं। सबसे पहले आप रिक्वायर्ड डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे जो आप चाहते हैं मूव करवाना। उसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे और वहाँ पे आपको कट बटन जो है वो नज़र आ रहा होगा, इसको आप क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे उस डेटा को आप मूव करवाना चाहते हैं। इसके बाद आप पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। आपका जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी एम्प्टी सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके जो मूविंग बॉर्डर हैं वो भी हट जाएंगे। टेक टिप: टू कॉपी Ctrl+C, टू कट Ctrl+X, टू पेस्ट Ctrl+V। अब बच्चों इन्हें आप शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी करना है तो आप Ctrl+C प्रेस करेंगे, अगर आपको कट करना है तो आप Ctrl+X प्रेस करेंगे, अगर आपको पेस्ट करना है अपने डेटा को तो आप Ctrl+V भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे।
Inserting rows, columns. To insert a row in a worksheet, follow these steps. Step 1. Select the row above which you want to insert a blank row. Step 2. Open the Home tab. In the Cells group, click the Insert button. A drop-down menu appears. Step 3. Select the Insert Sheet Rows option. A blank row will get inserted. To insert a column in a worksheet, follow these steps. Step 1. Select the columns to the left of which you want to insert a new column. Step 2. In the Home tab under Cells group, click the Insert button. A drop-down menu appears. Step 3. Select the Insert Sheet Columns option. A blank column will get inserted. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम रो को कैसे इंसर्ट करते हैं, आपको उस रो के अबव सेलेक्ट करना है जिस रो के अबव आप कोई ब्लैंक रो जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे, देन आप सेल ग्रुप में क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन पे। आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट शीट रोज ऑप्शन पे, तो आपकी ब्लैंक रो जो है वो आपकी शीट में इंसर्ट हो जाएगी जिस जगह पे आप उसे इंसर्ट करवाना चाहते थे। इसके बाद अगर आप कॉलम्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उस कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके लेफ्ट साइड में आप कोई भी न्यू कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे अंडर सेल्स ग्रुप। इसके बाद फिर से आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। आप इसमें से इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने एक ब्लैक कॉलम जो है वो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। नाउ डिलीटिंग रोज कॉलम्स। टू डिलीट रोज कॉलम इन योर वर्कशीट, फॉलो द गिवन स्टेप्स। Step 1. Select the rows or columns you want to delete. Step 2. In the Home tab under Cells group, click the Delete drop down arrow. Step 3. From the drop down menu, select the Delete Sheet Rows or Delete Sheet Columns option as required. The selected rows or columns will be deleted. तो बच्चों हम यहाँ पे जान लेते हैं कैसे हम कोई रो जो हमें नहीं चाहिए होती उसे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स को। आपको सबसे पहले उस रो को सेलेक्ट किया, उस कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आप रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे अंडर सेल्स ग्रुप। इसके बाद आपके सामने डिलीट ड्रॉप डाउन एरो जो है वो अपीयर हो जाएगा। इसमें से आपको डिलीट जो कमांड है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपके सामने जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें से आपको डिलीट शीट रो और डिलीट शीट कॉलम जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा, अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट शीट रो को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट शीट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपकी रो एंड कॉलम्स हैं जो आपने सेलेक्ट की थी वो डिलीट हो जाएगी। चेंजिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट। समटाइम्स द टेक्स्ट or value typed in a cell may not fit properly inside the cell and may spill out of the cell. To fit the text, the width of a column can be changed. The default column width is 8.43 characters and the default row height is 15 points. If column row has a width or height 0, it is hidden, i.e. it is not visible in the grid. To change the column width, row height, follow the given steps. Step 1. Select the columns or rows whose width or height you want to change. Step 2. Click on Format command in Cells group from Home tab. Step 3. Choose column width or row heights under Cell size section from the drop-down list. A column width or row height dialog box will appear. Step 4. In the column width or row height box, type the value that you want your column or row to be. तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कैसे हम अपनी रोज एंड कॉलम्स की जो हाइट और जो उनकी विड्थ होती है उन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जो हमारा टेक्स्ट होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमारी रोज या हमारे सेल से बाहर चला जाता है, तो उसे उस सेल के अंदर फिट करने के लिए हमें उस सेल का जो साइज़ है वो बढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, किसी भी जो कॉलम है या रो है उसे हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जिसके भी हम हाइट या विड्थ जो है वो बढ़ाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट कमांड पे इन सेल्स ग्रुप फ्रॉम होम टैब। तो बच्चों इसके नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 2 में आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट कमांड में इन सेल्स ग्रुप जो कि आपके
होम टैब में आपको नज़र आएगा। उसके बाद आप चूज़ करेंगे कॉलम की विड्थ या फिर रो की हाइट को, जो कि आपके सेल साइज सेक्शन के अंदर आपको नज़र आएगा। एक कॉलम विड्थ और रो हाइट डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इस कॉलम विड्थ में या रो हाइट बॉक्स में आप वैल्यू को टाइप करेंगे, ठीक है, जो भी आप रिक्वायर्ड हाइट या विड्थ चाहते हैं अपने रो या कॉलम की। मोर टू नो, you can also adjust the row height or column width by dragging borders of row और column headers। आप अपने रो की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो या कॉलम की विड्थ को भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने माउस से उसे ड्रैग करके। Formatting the cells. You have already learned how to enter and edit data in an Excel sheet. Excel provides various formatting features to make the data in the sheet look more attractive and appealing. You can change the font type, add colors to the cells, merge cells, align text to different positions of the cells. आप अपने सेल को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। एक्सेल जो होता है वो आपको वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने जो डेटा है अपनी शीट को, उसके लुक को आप अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग बना सकते हो। इसके थ्रू आप अपने फ़ॉन्ट के टाइप को, उसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ उन्हें मर्ज भी कर सकते हो अपने सेल्स को और अपने टेक्स्ट को आप अलाइन भी कर सकते हो। नाउ अप्लाइंग बॉर्डर्स टू सेल्स. If you print the working sheet, it will not show the grid lines and it may become difficult to understand the meaning of the data in such a case. Excel provides us with options to apply colored borders to the cells to make the data more readable. You can apply a printable grid from the borders option button in the font group. Step 1. Select a range of cells to apply border. Step 2. From the Home tab, click the small down arrow next to the borders button in the font group. A list of border styles appears. Step 3. Select the all borders option. Borders will be applied to all the selected cells. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम सेल्स में बॉर्डर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रिंटिंग किसी भी वर्कशीट को प्रिंट करना है, ठीक है, अगर वहाँ पे ग्रिड लाइंस आपको नज़र नहीं आती तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस डेटा को पढ़ना। तो इसके लिए आपको अपने सेल्स को बॉर्डर देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आपको रेंज ऑफ सेल्स को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आप बॉर्डर्स को अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आप होम टैब में जाएंगे और उसके बाद आप स्मॉल ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे जो कि आपको नेक्स्ट टू बॉर्डर्स बटन नज़र आएगा इन द फॉन्ट ग्रुप। एक लिस्ट ऑफ बॉर्डर स्टाइल जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा, उसमें आपको बॉर्डर की स्टाइल नज़र आ रही होंगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट द ऑल बॉर्डर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो बॉर्डर है वो आपकी सेलेक्टेड सेल्स पे अपीयर हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगे। अप्लाइंग कलर टू बॉर्डर्स. You can also add colors to the borders in the cell. Step 1. Select a range of cells to apply a colored border. Step 2. From the Home tab, click the small down arrow next to Borders button in the font group. Step 3. At the bottom of the drop-down list, select and click on More Borders option. The Format Cell dialog box opens up. Step 4. Select a line style. Step 5. Click on the color palette drop-down list and select a color. Step 6. Select a preset border, none, outline inside. Step 7. Click on the border lines under the border section where the border is to be applied. Step 8. Click OK to apply the borders. To remove cell border, select No Border option from Borders drop-down menu. तो बच्चों अगर आपको कलर्स अप्लाई करने हैं अपने बॉर्डर्स में, सपोज आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए, आपको ग्रीन कलर या कोई दूसरा कलर चाहिए, तो आप इन्हें भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको रेंज ऑफ सेल्स को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आप बॉर्डर के कलर को अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे, देन उसके बाद आप क्लिक करेंगे स्मॉल डाउन एरोस को नेक्स्ट टू बॉर्डर्स बटन, ठीक है, इन द फॉन्ट ग्रुप। इसके बाद आप बॉटम पे जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे और सेलेक्ट करेंगे मोर बॉर्डर्स ऑप्शन को। इसके बाद आपके सामने फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लाइन के स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कलर पैलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो अपीयर हो जाएगी जहाँ पे आपको कलर्स को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे आप प्रीसेट बॉर्डर को, ठीक है।
उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन द बॉर्डर लाइन अंडर द बॉर्डर सेक्शन, जहाँ पे आपको बॉर्डर जो है वो अप्लाई करवाना है। देन आप ओके पे क्लिक करेंगे टू अप्लाई बॉर्डर। उसके बाद अगर आप सेल बॉर्डर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको नो बॉर्डर को सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिलिंग कलर्स इन अ सेल. Different cells in the worksheet can be shaded with different colors to make it attractive or highlight data. Step 1. Select the range of cells to apply the shading. Step 2. From the Home tab, click the small down arrow next to the Fill Color button in the font group. A palette with similar theme colors appear as a drop-down list. Step 3. Choose a color to apply from the color palette. The cells will get shaded by the selected color. अगर आपको अपने सेल्स में कोई कलर फिल करना है तो आप कैसे करेंगे? सिंपली आपको उन रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप शेडिंग जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप होम टैब से क्लिक करेंगे स्मॉल डाउन एरो पे नेक्स्ट टू फिल कलर बटन, ठीक है, जो कि आपको फॉन्ट ग्रुप में नज़र आएगा। एक पैलेट जो होगी सिमिलर थीम कलर के साथ आपके सामने अपीयर हो जाएगी एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको कलर को चूज़ करना है उस कलर पैलेट में से, तो जो सेल है वो आपके सेलेक्टेड कलर के साथ क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। नोट, व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर ओवर अ कलर इन द कलर पैलेट, अ लाइव प्रीव्यू ऑफ द कलर इज शोन इन द सेलेक्टेड सेल। जब आप अपने माउस पॉइंटर को उस सेल के उस कलर के ऊपर लेके जाते हो तो आप देखोगे आपका जो सेल है वो उन कलर के साथ क्या होता जाता है? रंग करके आपको प्रीव्यू उसका दिखाता रहता है। अलाइनिंग टेस्ट. In Excel, you can align the text in the cells as per your requirements. Different aligning options are available under the alignment group in the Home tab. For text type data, the default horizontal alignment is left, and for numeric data, it is right. In addition to the horizontal and vertical alignments, data can also be aligned diagonally. To align text, follow these steps. Step 1. Select the range of cells. Step 2. From the Home tab, click on the Center Align button under the Alignment group. In the same way, you can align text right, left, top, etc. The given figure shows the different possible alignments that can be applied using the vertical and horizontal align buttons under the Alignment ग्रुप ऑफ द होम टैब। तो बच्चों, अब हम टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एक्सेल में भी आप अपने टेक्स्ट को जो आपके सेल के अंदर होते हैं उसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंटर, लेफ्ट, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें डिफरेंट अलाइनमेंट्स को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। जो आपका टेक्स्ट टाइप डेटा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ होता है। जो आपका न्यूमेरिक डाटा होता है वो राइट की तरफ होता है। अगर आप इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो आपको रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप होम टैब से क्लिक करेंगे सेंटर अलाइन बटन को, जो कि आपको अलाइनमेंट ग्रुप में नज़र आ रहा होगा। इस तरह से आप सेंटर की जगह लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं, मतलब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। गिवन फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे आप अलग अलग तरीके से अपने जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की उसे आप चेंज कर सकते हैं। Merge and center align text. To align text, follow these steps. Step 1. Select the cells to merge. Step 2. From the Home tab, click on the Merge and Center button under the Alignment group. The cells from A1 to B1 will get merged to form a single cell, and the text in the cell will get center aligned within the merged cell. तो बच्चों, हम जान लेते हैं कैसे हम अपने सेल्स को क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो सके। इसके लिए आपको उन सेल्स को सेलेक्ट करना होगा जिसे आप मर्ज करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन द मर्ज एंड सेंटर बटन, जो कि आपको अलाइनमेंट ग्रुप के अंडर नज़र आ रहा होगा। फिर इसके थ्रू आपके जो A1 से B1 के जितने भी सेल्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे, और इनके अंदर का जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट. ओरिएंटेशन refers to the rotation of text in a desired angle. To rotate the text of the cell, follow these steps. Step 1. Click in the cell that contains the data whose orientation you want to change. Step 2.
click on the orientation button drop down arrow and select an option to set the orientation of text in a cell. तो बच्चों ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट जो होता है ये आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकल में. आप इन्हें रोटेट भी कर सकते हो अपने सेल के अंदर. ठीक है, आपको सबसे पहले सेल पे क्लिक करना है जिसके डेटा को आप उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हैं. उसके बाद आप ओरिएंटेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन एरो जो है वो अपीयर हो जाएगा. उसके बाद आपको ऑप्शंस को चूज़ करना है और आप अपने सेल का जो टेक्स्ट है उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं. Now wrapping text in a cell. The wrap text option is used in case the text is too long to fit within a cell. It makes the cell content visible within the cell by distributing the text in multiple lines. Step 1. Select the cells B2, B7. Step 2. From the Home tab, click on the Wrap Text button under Alignments group. The text in the cells will get distributed in multiple lines and fit in the वृत्त. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम अपने सेल का जो टेक्स्ट होता है उसे रैप करते हैं. जो टेक्स्ट रैप ऑप्शन होता है ये आपके जो टेक्स्ट होता है जो आपकी लाइन से बाहर जा रहा होता है उनके टेक्स्ट को क्या करता है ये आपके सेल के अंदर ही मर्ज करता है, उन्हें रैप कर देता है. अब ये कैसे करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले सेल्स को सेलेक्ट करना होगा. जैसे कि आपका B2 एंड B7 जो दो सेल है इन्हें आपको मर्ज करना है इनके टेक्स्ट को. उसके बाद आप होम टैब से क्लिक करेंगे टेक्स्ट रैप बटन पे जो कि आपको अलाइनमेंट ग्रुप के अंडर नज़र आ रहा होगा. फिर आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो आपके सेल के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीपल लाइंस में रैप हो जाएगा. थिंक बॉक्स. विच फीचर ऑफ एक्सेल अलाउज यू टू डिस्प्ले मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इनसाइड अ सेल. तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेल का कौन सा ऐसा फीचर होता है जो आपको किसी भी सेल के इनसाइड मल्टीपल लाइंस को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है. Autofill. The autofill feature is used to enter a predefined series of data such as text or numbers in a worksheet quickly. You need to specify the first two values of the series in order to determine the increment value of the series. For example, 1 2 3 4 ... 1 3 5 7 ... You can create both numeric data series and series of dates, weekdays or months. To create a numeric data series, follow the given steps on the next page. Step 1. Enter the first two values of data into two adjacent cells and select both the cells. Step 2. Click the fill handle present on the lower right corners of the selected cells and drag it to enclose the desired area to be filled with the series of numbers. To create a predefined series of months, follow the given steps. Step 1. Enter the first value of the series in a cell and select it. Step 2. Click the fill handle and drag it to enclose the desired area to fill with the series of data. तो बच्चों अब हम ऑटो फिल फीचर के बारे में जान लेते हैं. इसको आप यूज़ करते हो किसी भी प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डेटा को किसी दूसरी जगह पे उसे अप्लाई करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए. ठीक है, इसके लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है फर्स्ट टू वैल्यूज़ को जो कि आपकी सीरीज़ में किसी भी ऑर्डर में डिटरमाइंड होते हैं इन द इंक्रीमेंट ऑफ द सीरीज़. ठीक है, आप इन्हें क्रिएट कर सकते हो किसमें, न्यूमेरिक डेटा सीरीज़ में या फिर सीरीज़ ऑफ डेट्स में, वीकडेज़ में एंड मंथ्स में. ठीक है, और आपकी जो न्यूमेरिक डाटा सीरीज़ है वो क्रिएट हो जाएगी थ्रू द फॉलोइंग गिवन स्टेप्स. इन स्टेप्स को हम देख लेते हैं. सबसे पहले आपको फर्स्ट टू वैल्यूज़ जो है वो एंटर करनी है किसी भी डेटा की. ठीक है, मतलब दो जो एडजेसेंट आपके सेल होते हैं उनमें आपको दो वैल्यूज़ को डालना ही पड़ेगा. उसके बाद आप फिल हैंडल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे जो कि आपके लोअर राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, उसके बाद आप ड्रैग करके लेके जाएंगे जितने एरिया तक आप उसे फिल करना चाहते हैं. ठीक है, उसके बाद आप क्रिएट करेंगे अ प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ मंथ. तो बच्चों हम ऑटो फिल के बारे में जान लेते हैं. ऑटो फिल जो होता है ऐसा फीचर होता है जो कि आपके डेटा को जो प्री डिफाइंड सीरीज होते हैं उन्हें एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे आपके नंबर्स होते हैं, आपके वीकडेज होते हैं, आपके मंथ्स होते हैं, एक्सेट्रा. ये आप बार बार फिल नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हें इन सीरीज़ को आप ऑटो फिल के ज़रिए दिखा सकते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे
2 वैल्यूज़ को क्या करेंगे, एंटर करेंगे किसी भी डेटा की, ठीक है, और वो हम एंटर करेंगे 2 एडजेसेंट सेल, मतलब एक के नीचे जो सेल आपके आते हैं उसमें आपको 2 वैल्यूज़ को डालना ही पड़ेगा। तो बच्चों इसके लिए आपको 2 एडजेसेंट सेल में अपने डेटा को, अपनी वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप दोनों सेल्स को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे फिल हैंडल पे, जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेलेक्टेड सेल। उसके बाद आप ड्रैग करेंगे उसे और आप इनक्लोज करते हुए उसे लेकर के जाएंगे जहाँ तक आप उसे फिल करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ मंथ को डिफाइन करना है, क्रिएट करना है, तो आपको ये जो स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं इन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट वैल्यू को क्या करना है, एंटर करना है ऑफ द सीरीज इन द सेल, और उसको फिर क्या कर लेना है, सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फिर से फिल हैंडल पे क्लिक करना है, आप उसको फिर ड्रैग करके लेके जाएंगे टू एनक्लोज द डिजायर्ड एरिया, ठीक है। सपोज आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं, तो आपने 2 मंथ्स ऑलरेडी फिल करते हैं, तो आपको उसको बाकी के जो 10 सेल हैं वहाँ तक उसको ड्रैग करके लेके जाना है, ताकि आप अपने डेटा की सीरीज़ को आप वहाँ पे क्या कर सकें, फिल कर सकते हैं। नाउ क्रिएटिंग कस्टम लिस्ट. You might have a list that is very often used. Instead of typing the list each time, you can create your own list called custom list and use it with autofill feature. Have a look at this list of peripheral that are used regularly. Let us create a list that can be used frequently. To create custom list, follow the given steps. Step 1. Click on the File tab. From the left pane of the File interface, click on the Option button under More. The Excel option dialog box open up. Step 2. Click on the Advanced section in the left pane and scroll down to the General section. Step 3. Click on the Edit Custom List button. The Custom List dialog box opens up. Step 4. Under the Custom List box, select New List option. Step 5. Type a new series with the entries under the list entries. List box by pressing the enter key after every entry typed in the list. Step 6. Click on the add button to include the newly typed list under the custom list box and click on OK to save and store the list. Now use this list with the fill handle. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम अपनी खुद की कस्टम लिस्ट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें खुद की लिस्ट होती है क्रिएट करनी होती है, जैसे किसी सामान की लिस्ट होगी या किसी नंबर ऑफ़ सीरीज़ की लिस्ट होगी, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह की लिस्ट होगी, तो इसे हम क्रिएट कर सकते हैं वर्कशीट पे। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फाइल टैब में क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेफ़्ट पैन से किसी भी फाइल इंटरफेस के क्लिक करेंगे ऑन द ऑप्शन बटन, जो कि हमें वहाँ पे अंडर मोर ऑप्शन में नज़र आएगा। इसके बाद एक्सेल ऑप्शन जो होते हैं वो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन करके दिखाएगा। देन हम एडवांस सेक्शन पे क्लिक करेंगे इन द लेफ्ट पैन और हम स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे टू जनरल सेक्शन। इसके बाद हम क्लिक करेंगे ऑन द एडिट कस्टम लिस्ट बटन, ठीक है, और फिर हमारे सामने कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन अप हो जाएगा। इस कस्टम लिस्ट के अंडर हम लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, न्यू लिस्ट ऑप्शन को, देन हम टाइप करेंगे न्यू सीरीज़ को विद द एंट्रीज अंडर द लिस्ट एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद हम एंटर करते जाएंगे तो हमारी जो लिस्ट है वो क्या होती जाएगी, टाइप होती जाएगी। देन हम क्लिक करेंगे ऐड बटन पे टू इंक्लूड न्यूली टाइप्ड लिस्ट। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे अपनी जो लिस्ट है उसे क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है। और अब जो ये जो लिस्ट है इसे हम यूज़ करेंगे विद द फिल हैंडल। नाउ फ्लैश फिल. Flash fill is a time-saving feature. It identifies the data fill pattern that you use frequently in a worksheet and then fill the remaining series accordingly. Let us try it practically. Make 2 columns, names and initials in the Excel sheet. Fill the data in names column as shown in figure. The initials column should have data that is a combination of the first character of the first name and last name. For example, RK for Rahul Kumar. Type RK in the initials column and press the enter key. Click on the fill drop down arrow present in the editing group on the home tab and select the flash fill option. You can also use the shortcut key
Ctrl+E. The initial of the rest of the entries will be automatically added in the remaining cells of the initial columns. तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कैसे हम फ्लैश फिल को यूज़ करते हैं. फ्लैश फिल जो है ये हमारा टाइम सेविंग फीचर माना जाता है. ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है हमारे डेटा पैटर्न को जो कि हम फिल करते हैं फ्रिक्वेंटली किसी भी वर्कशीट में. इसके लिए आपको 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. एक होगा आपका नेम्स एंड दूसरा होगा आपका इनिशियल. ठीक है, उसके बाद आप डेटा को फिल करेंगे इन नेम्स कॉलम. उसके बाद आप इनिशियल कॉलम पे अपने इनिशियल्स को फिल करेंगे. जैसे राहुल कुमार के लिए आप RK को फिल करेंगे. फिर जो RK है वो आप टाइप करेंगे इन द इनिशियल्स कॉलम. उसके बाद आप एंटर की को प्रेस करेंगे. देन आप क्लिक करेंगे ऑन फिल ड्रॉप डाउन एरो जो कि प्रेजेंट होता है इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब. देन आप सिलेक्ट करेंगे फ्लैश फिल ऑप्शन को. उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की Ctrl+E को. मतलब आप इसे अपने कीबोर्ड से भी प्रेस करके इसे यूज़ कर सकते हैं. फिर जो आपके इनिशियल्स होंगे रेस्ट ऑफ द एंट्रीज़ के लिए वो ऑटोमेटिकली फिल होते चले जाएंगे आपके रिमेनिंग सेल्स ऑफ द इनिशियल कॉलम्स में. तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.